دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے کل میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ان کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے۔ پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ملاقات کروں گا اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس بل میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ اسے ایک متفقہ آئینی ترمیم سمجھا جائے۔ مولانا مان گئے، آئینی ترمیم کے معاملے پر بڑا بریک تھرو، آئینی ترمیم کے مسودے پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی تصدیق، نواز شریف سے بھی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسودے میں ملک کو کمزور کرنے والے مواد کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنی تجاویز مرتب کی ہیں، انشاءاللہ پورے ایوان کا اتفاق حاصل کر لیں گے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی بلاول بھٹو کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ آئینی ترمیم کسی فرد واحد سے متعلق نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں، 2006 سے انتظار کر رہا ہوں۔ مسودے کی شکل کیا ہوگی اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم نے غیر متنازع آئینی ترمیم کرنی ہے، امید کرتے ہیں کہ جو حتمی مسودہ پارلیمنٹ سے منظور ہوگا وہ ہمارا ہی ہوگا۔ دعا گو ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اتفاق رائے کے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کو قائل کریں۔ تحریک انصاف اتفاق کر لیتی ہے تو ویلکم کروں گا۔ پی ٹی آئی مثبت سیاست کرنے کے بجائے رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہوں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو۔ جب بھی اس ملک میں کامیاب آئین سازی ہوا ہے تو سب سے بڑا رول جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے۔ میاں محمد نواز شریف سے رائیونڈ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مل رہا ہے، ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کنسنسس بنا ہے وہ کنسنسس جے یو آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا۔ پاکستان کی 27 سال بعد بڑے ایونٹ کی میزبانی شنگھائی تعاون تنظیم کا باقاعدہ سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ ایس یو اجلاس میں 8 ملکوں کے وزرائے اعظم شرکت کریں گے۔ معیشت، تجارت، ماحولیات کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اور روسی وزیر اعظم شرکت کریں گے۔ بیلاروس، قازقستان، تاجکستان کے وزرائے اعظم بھی موجود ہوں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، ازبک وزیر اعظم اور ایران کے نائب صدر بھی کانفرنس کا حصہ ہوں گے۔ آج صبح معزز مہمان کنونشن سینٹر پہنچیں گے۔ وزیر اعظم تمام غیر ملکی مہمانوں کا استقبال کریں گے۔ ایس سی او میں شرکت کرنے والے لیڈران گروپ فوٹو لیں گے۔ اجلاس کے آغاز میں وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے۔ پاکستان میں غیر ملکی معزز مہمانوں کا شاندار ویلکم۔ وزیر اعظم کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اعزاز میں شائیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفود کے سربراہان کا فردن استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم، روسی ڈپٹی وزیر اعظم، بھارتی وزیر خارجہ کی عشائیے میں شرکت۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، غیر ملکی سربراہان اور مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ روسی وزیر اعظم میخائیل مشتوسن پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ایرانی نائب صدر آج رات پہنچیں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم اور روس کے ڈپٹی وزیر اعظم بھی اسلام آباد پہنچ گئے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور قازقستان کے وزیر اعظم کی بھی پاکستان آمد۔ کرغزستان، تاجکستان، بیلاروس کے وزرائے اعظم اور ترکمانستان کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین کی بھی اسلام آباد آمد۔ وفاقی وزراء نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر آصف زرداری سے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی ملاقات، پاک چین اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ معیشت، سرمایہ کاری اور علاقائی روابط سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے، تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی اہمیت پر زور۔ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے۔ چینی کمپنیز کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سی پیک اور گوادر پورٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے بھرپور استفادہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
सदर मुमलिकत का दहशतगर्दाना हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर दिली ताज़ियत का इजहार। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन सी-पैक मंसूबों को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन अपनी मजमूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। नवंबर में चीन का दौरा करूंगा, सदर जरदारी की गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा होता जा रहा है। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और खुशहाली की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। ज़ोहराने में अरकान पार्लियामेंट, गवर्नर्स और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म काहिरा रसूल ज़ादा की मुलाकात। शहबाज शरीफ से SCO इजलास में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। दोनों ममालिक में तिजारत और तवानाई समेत तमाम शोबों में ताउन मजबूत करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म से बेलारूस के वज़ीर आज़म की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की बेलारूस को SCO का मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद। शंघाई स्पिरिट को फ़रोग़ देने में बेलारूस के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राई मशीनरी और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का तुर्कमेनिस्तान के साथ देरीना तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक के माबैन आला सतह के तबादलों को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी अमूर पर बेलारूस के किरदार की सिताइश का अयादा किया। जनरल आसिम मुनीर का दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत को मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की महारत और कुर्बानियों का एतराफ़। सब्सटेंटिव जो डिस्कशंस हैं उसके लिए अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स SCO की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस कॉन्फ्रेंस के एलामिया के बारे में इन्होंने नेगोशिएशंस की हैं और एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो लीडर्स के सामने पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारत से दो तरफ़ा मुज़ाकरात को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। SCO इजलास कसीरुल-जहती फ़ोरम है, दो तरफ़ा ताल्लुकात का अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं। SCO के मौके पर भारत से दो तरफ़ा बातचीत नहीं होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। SCO इजलास में सरबराहान ममलिकत आगे का लाहे अमल तय करेंगे। मुमताज़ ज़हरा बलोच की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का SCO मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा। SCO रूल्स के मुताबिक दो तरफा मामलात को नहीं उठाया जा सकता। पाकिस्तान और भारत को दो तरफा ताल्लुकात के लिए बातचीत का आगाज करना चाहिए। आज नहीं, लेकिन किसी न किसी दिन तो बातचीत का आगाज करना पड़ेगा। भारतीय वज़ीर आज़म में एतमाद होता तो वो खुद पाकिस्तान आते। भारत ने सार्क प्लेटफॉर्म के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान और भारत मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए बात करें? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत एक बार फिर मुतहर्रिक। कौमी असम्बली और सैनेट इजलास 17 अक्टूबर को तलब। सैनेट का इजलास सपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब किया गया। 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। तमाम हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली और सैनेटर्स को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियों के अहकामात। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी 17 अक्टूबर को तलब कर लिया। इजलास में आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने भी अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। 17 अक्टूबर तक तमाम अरकान कौमी और सैनेट इस्लामाबाद में मौजूदगी यकीनी बनाएं। पीपल्स पार्टी की अरकान को हिदायत। पीपल्स पार्टी ने अरकान को 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज की तकरीबात में शिरकत से भी रोक दिया।
आईनी तरमीम पर इत्तिफाक़ राय पैदा करने का मिशन। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। चेयरमैन कमेटी से खुशीशा इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन कमेटी ने तमाम मेंबरान को हाज़िरी यकीनी बनाने का पैगाम भिजवा दिया। इजलास में आईनी मुसव्विदों पर इत्तिफाक़ राय के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। कराची में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कोई ओहदेदार शरीक ना हुआ। वकला की आईनी तरमीम नामंजूर के नारे। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले तरमीम करना चाहते हैं। वक्त कम है, मुख्तलिफ मुसव्विदे सामने हैं, नहीं पता असल कौन सा है। पार्लियामान का कोई इख्तियार नहीं है। ये ड्राफ्ट कहीं और से ही बना है और कहाँ गया है, मंजूर करो। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का खिताब। जिस मोड़ पर हम खड़े हैं ये 2007 से ज़्यादा खतरनाक है। आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर बार समझता हूँ। रिफॉर्म्स की आड़ में आईनी तरमीम लाना 2 दहाइयों का धचका होगा। मुनीर ए मलिक। लाहौर के निजी कॉलेज में तालबा के साथ मुबैना ज़्यादती की खबर का मामला। हुकूमत पंजाब की हाई पावर कमेटी की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासरा लड़की और वालिदैन से उनके घर पर 3 घंटे मुलाकात। 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए। वज़ीर आला पंजाब की बनाई गई हाई पावर कमेटी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में मुतासरा तालबा के घर पहुंची। सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह की कमेटी का इजलास। तमाम अवामिल का तफसीली जायजा। कमेटी ने DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान, डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आरिफ चौधरी के बयानात लिए। प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर सादिया जावेद, ASP गुलबर्ग शाहरुख खान का भी बयान रिकॉर्ड किया गया। सिक्योरिटी इंचार्ज पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस रेस्क्यू ऑफिसर शाहिद और 28 तालिबे इल्मों के बयानात तलब पर। मुबैना ज़्यादती वाक़े से मंसूब तालबा की तहरीरी बयान में वाक़े की तरदीद, मन घड़त खबरें फैलाने वालों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। मुलविस अफराद के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। तालबा के वालिद की भी तहरीरी बयान में ज़्यादती के वाक़े की तरदीद। 2 अक्टूबर को पाँव पर चोट लगने से मुंह के बल गिरी थी। अद्वियात से अफाका ना होने पर सांस की तकलीफ में मुब्तला हुई। शदीद तकलीफ के बाद CG हॉस्पिटल के ICU में मुंतकिल किया गया। 11 अक्टूबर को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज करते हुए 15 रोज़ा आराम का मशवरा दिया। दस अक्टूबर को एक खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। तहकीकात होंगी कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में फेक न्यूज़ को शेयर किया गया। स्टूडेंट्स ने कहा कि हम अपने कैंपस के बाहर एहतजाज करेंगे। पुलिस ने कहा कि अगर कोई मुतासर फैमिली है तो सामने आए, मुकम्मल तहकीकात करेंगे। 2 अक्टूबर को बच्ची घर में गिरी। घर में गिरने वाली बच्ची को जनरल अस्पताल में दाखिल किया गया। 4 अक्टूबर को बच्ची को न्यूरो वार्ड में शिफ्ट किया गया। 6 अक्टूबर को बच्ची को इत्तेफाक अस्पताल मुंतकिल किया गया। ASP डिफेंस लाहौर शहर बानो नकवी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट तहरीक इंसाफ को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI हशाश बशाश हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बानी PTI को मैदे के मसाइल तेजाबियत हैं जिसके लिए पहले से इलाज जारी है। बानी PTI को कान की बीमारी से मुतालिक पहले से शिकायत है जिसका इलाज जारी है। मजमूई तौर पर बानी PTI सेहतमंद हैं और मजीद किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। मेडिकल चेकअप शाम 4:30 बजे किया गया।